So in previous class, we discussed about some numerical related to the mechanical translation system and mechanical rotational system, and some numerical about the analogous system, right? So today we will talk about uh, some concept about the transfer function, how to find the transfer function and electrical system, right? So definition of the transfer function is the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform input with all initial condition to be zero is known as transfer function. Suppose there is a system or the system transfer function or the gain is defined by g of s, and there is a input is denoted by R of S, and there is a output is denoted by C of S. This R of S and C of S is the standard form or the standard notation in the control system, right? तो इनपुट का आपको आर एफ एस में आप रिप्रेजेंट करोगे और आउटपुट को सी ऑफ एस में, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर जी ऑफ एस इज नथिंग बट द गेन, राइट? तो दिस पर्टिकुलर गेन or the it's called the transfer function. So transfer function is called Laplace transform output, that is C of S, a Laplace transform of input, that is R of S. That means if any system is given that input is R of t and output is C of t, right? So Laplace transform input is R of S and Laplace transform output is C of S, right? So G of S is defined as C of S divided by R of S with all initial condition to be zero. तो आपको क्या करना है कि जितने भी इनिशियल कंडीशन है उसको आपको जीरो ज्यूम करना है और उसके बाद में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट फाइंड कर सकते हो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ transfer function for any system, right? So in this particular class we see the numerical related to the electrical network, right? Earlier we have seen that numerical about the mechanical system. In this class we have seen the numerical related to the electrical system, right? So there is a system, there is a series RLC circuit. Here three parameters or three element RLC is connected in series. There is a current flowing through this network is I, and voltage, that input voltage is EIT and output voltage is E naught T, right? So we finding out the transfer function of this particular system. So suppose this is a network, this is the question. There is a series RLC circuit R, L and C, and there is a input is given E of IT and its element are R, L and C, right? And voltage across this is E naught T, that is output voltage, right? This is the input voltage, and current flowing through the circuit is I of t, right? So we are finding out that Laplace transform output is Laplace transform input, right? So we can find E naught S upon EIS, right? ये अपन को फाइंड करना है. अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, if we apply KVL in this particular loop, so we can write the voltage across that particular voltage across R plus voltage across L plus voltage across C equal to total voltage, right? So EIT equal to R into IT plus L di by dt plus 1 by C integration I dt, right? And if you are talking about the voltage across output, that is denoted by E naught T equal to 1 by C integration I dt. We already know that if voltage across capacitor is given by 1 by C I into dt, right? Voltage across capacitor is given by the 1 by C I dt. Suppose this equation number 2. So first we take the Laplace transform of equation 1, then we take the Laplace transform equation 2. So first we will take Laplace transform equation 1, that is E naught S is equal to R I of S plus L
and this Laplace transform of derivative is s into is with initial condition is to 0. 1 by c is divided by s, right? If you common I of s, then r plus l into s plus 1 by cs. If you LCM, if you take LCM cs, then equation become r into cs, that rcs plus lc s square plus 1, right? This is the E naught s, right? Sorry, EIS, not E naught s, this EIS. This is EIS. This equation number, suppose third, right? Then we will take Laplace transform of input, output, right? So E naught t, that is equation number second. So we can take Laplace transform of second equation, right? So E naught s equal to 1 by c is divided by s, right? So this equation, suppose this equation number 4. So we can take ratio of E naught s upon EIS. This equation number 4 divided by equation number 3, right? So E naught s divided by EIS. So E naught s equal to, that is 1 by CS into IS, right? So IS divided by CS, and equation third, that is EI of S is equal to IS into RCS plus LCS square plus 1 divided by CS, right? So we cancel out this term I of S and I of S and C of S and C of S. So what will be the equation? E naught S upon EIS equal to 1 divided by, अपन एस स्क्वायर की टर्म्स को अगर पहले ले लेते हैं तो एल सी एस स्क्वायर प्लस आर सी एस प्लस 1, राइट? So this is the transfer function of this given circuit. This is the transfer function, right? Then this particular method, suppose this is first method, so this method is ये मेथड जो है आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इस सेकंड मेथड अपन नॉर्मली अप्लाई करेंगे. वो क्या अप्लाई करेंगे? सेकंड मेथड में क्या करते हैं कि that this particular circuit is in time domain, right? This particular circuit in time domain, so we can convert time domain into frequency domain circuit, right? So for the converting time domain into frequency domain, some changes we will make in elements, that is we convert R into R, L into S into L, and C into 1 by CS. So we can this particular changes into time domain into frequency domain, right? So in this particular circuit, if we changes the time domain into frequency domain, so this particular circuit becomes R become R, this is L and this is C. And this become R, L into S into 1 by CS, right? And E of IT become EI of S, and E naught T become E naught S, right? And I of T become I of S. So this is the frequency domain circuit. Earlier this circuit is given in time domain. So this particular circuit is frequency domain. So this is frequency domain circuit. If we are applying that model voltage division rule, there is a rule of voltage division. So if we are applying voltage division rule, that is E naught, we can write E naught of S equal to 1 by CS divided by sum of all the element, that is R plus L into S plus 1 by CS into total voltage, that is EI of S. So if you common the term, if you LCM the term CS, then we become RCS plus LCS square plus 1 divided by CS into, अब ये EIS को टर्म्स को मैं यहाँ पर वापस लेफ्ट हैंड साइड में ला सकता हूँ, राइट? तो यहाँ से आपके पास CS कैंसिल आउट हो गया, ये CS कैंसिल आउट,
So equation becomes E naught S divided by EI of S equal to 1 divided by LCS square plus RCS plus 1. ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये मेथड जो है दोनों का आंसर सेम आ रहा है. ये आपके लिए जो मेथड है इट इज इजीएस्ट मेथड. ये आपके लिए इजी मेथड रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई किया है. तो दिस सेकंड मेथड इज इजीएस्ट मेथड. ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया है, इन फर्स्ट मेथड we will write the equation of KVL in this particular loop. There are two equations. Then we take Laplace transform, and then we finding out that transfer function E naught S upon EIS. In second method, we will convert the time domain circuit into frequency domain circuit, and according to the equation, I will apply here voltage division, right? And we find the transfer function of this particular question. Any doubt in this question? Now move to the next question. The second question is that find the transfer function of the given question. तो इसमें आपको बताया नहीं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या फाइंड करना है. तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दैट इज द आउटपुट, दैट इज द इनपुट, राइट. दैट मीन्स ई नॉट एस अपॉन ई आई एस. यहाँ पर आपके पास एक सर्किट है, R1 and C1 are in the parallel and R2 and C2 are in series, right? So we have applied here second method, that is we convert the time domain circuit into frequency domain circuit, right? So in this particular question there is R1 and C1 are in parallel. If R1 and C1 are in parallel and there is a R2 and C2 are in series. This is R1, this is C1, R2 and C2. If input voltage is given as EIT, right? EIT, right? And this output voltage given as E naught T, right? This is the circuit, right? And current is given by the I of T. This current is I of T. So first we will convert the circuit into frequency domain, right? So E, this is IT, EI of T, right? So we can convert this circuit in frequency domain. So R become R, L become, there is no L, there is no inductance, and C become 1 by C, right? So in this particular circuit we can convert that this R1 become R1 and this S1 become S1. Suppose I have this IT become I of S, this IT become I of S, and R1 become R1, and this C1 become 1 by C1S, and this EIT become E naught S, and this C1 become 1 by C2S, right? So this is the circuit in frequency domain, not C2 into S, right? This is the circuit in frequency domain, right? So in this particular circuit we can apply here voltage driven rule, same, right? So suppose this particular impedance, suppose I am consider this particular impedance Z1, this particular impedance, suppose
Z2, right? So we can apply that here, that E naught S, that E naught S equal to Z2 upon Z1 plus Z2 into total voltage EIS, right? Right? We can apply here voltage division rule. So first we will find the Z1 and Z2. So what will be the Z1? Z1 is the parallel combination of R1 and 1 by C1S. So R1 into R2 divided by R1 plus R2. So R1 into 1 by C1S divided by R1 plus 1 by C1S. So R1 divided by C1S, if you LCM, take LCM C1S, then R1 C1S plus 1 divided by C1. So we can cancel out C1S and C1S, and Z1 become R1 divided by R1 C1S plus 1. This is the Z1. Then we finding out Z2. Z2 is the series combination of R2 and 1 by C2S. So this is the R1 plus R2. So this become R2 C2S plus 1 and divided by C2S, right? So this is Z1 and Z2. So we can put the value of Z1 and Z2 in this equation, right? So this is equation number 1. So E naught S upon EIS become Z2 means, what is the value of Z2? R2 C2S plus 1 divided by C2S, and EIS become that R1 upon R1 C1S plus 1, and Z2 become R2 C2S plus 1 divided by C2, right? This is the equation, right? And we can LCM in the first numerator part, that is C2S. So if we take LCM, that R1 C1S plus 1 and C2S, right? So first we'll write numerator part R2 C2S plus 1 divided by C2S, and divided by, if we common, that R1 C1S plus 1 and C2S, right? So if we multiply that C2S into R1, right? So S C2 R1, right? Plus then we R2 C2S plus 1, we multiply with R1 C1S plus 1, right? And after this we can cancel out C2S C2S, and this particular R1 C1S go into the numerator part. So this equation become R2 C2S plus 1 and R1 C1S plus 1 डिवाइडेड बाई, अब आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी आप रह सकते हो, ठीक है? तो R2 C2S प्लस 1, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? दिस इज द E naught S upon EIS. So this is the transfer function of this given question. Any doubt in this question? ये यहाँ पर C नहीं होगा, C2 है, ठीक है? This is C2. Then go to the next question. Same question, there is find the transfer function of this given network. आपको एक R1 चार आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं, R1 और R2 C1 एंड C2, राइट? अब ये सर्किट थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट? पहले तो आपके पास सिंपल सीरीज सर्किट थे, अब आपके पास सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन आ गया। तो फिर आप क्वेश्चन को अप्रोच आपके पास वही रहेगी। अप्रोच क्या रहेगी? फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सर्किट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, then we apply here whatever according to the question, voltage division rule, current division rule, KCL, KVL,
you already know about the what is how to apply the KCL and KVL, right? So in this particular question, that R1 and C1 is given and R2 C1 is given, right? This is अगर आपको सपोज ये VI और V नोट दे रखा है तो आप बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना है VIT और V नोट T है, राइट? दिस इज द इन टाइम डोमेन. अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ किस तरीके से करेंगे इसको. There is a 4 element. One is R1, R2, right? And there is 2 elements C1 and C2. So this become VIT. So this will become in frequency domain as VI of S, right? This R1 and R2 are same, and this is C1. So this will become in frequency domain is C1 of 1 by C1S. So this becomes 1 upon C2S, right? Or here that output voltage V naught T, then in frequency domain it will become V naught S, right? There is no current is given this particular question. So it is asking the transfer function. That means V naught S divided by VI of, right? So there are two methods we have applied here. Either we can use mesh analysis or we can use nodal analysis, right? So we will prefer the method of nodal analysis. So by using nodal analysis, we can assume one node at the ground, or we can say zero voltage. So this particular node becomes zero voltage, this particular node becomes zero voltage. So if this particular node is zero voltage, so this voltage becomes V naught S, and this if this becomes zero voltage, then this node becomes VI of S, right? And if we don't know about this particular node, so we can assume of any name. Suppose we can assume that with this particular voltage of V of S, right? So at this particular node, we apply KCL here, right? So we can apply KCL at node having voltage V of S. तो सपोज मैं यहाँ पर V of S से अगर इक्वेशन में अगर अप्लाई करता हूँ, सपोज दिस करंट इज I1 and suppose this current is I2 and this current is I3. So we can apply here I1 equal to I2 plus I3, right? So this I1 become the VI of S minus V of S, right? Divided by total resistance. Total resistance R1. तो यहाँ पर VI of S है, यहाँ V of S है, तो current flowing through the VI of S to the V of S, तो equation become VI of S minus V of S divided by R1. यहाँ की करंट लिखनी है तो V of S माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 बाई C1S, राइट? और ये C1S जो है ये यहाँ पर इसको मैं ऊपर लगा सकता हूँ, तो आइदर वी कैन राइट इनटू C1 ऑफ S. यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा, दैट इज प्लस, दैट इज इक्वल टू, राइट? एंड प्लस अब यहाँ I3 करंट में लिखता हूँ, इट इज V of S minus V naught S divided by R2, right? So V naught S, sorry, V of S minus V naught S divided by R2. ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली आप इक्वेशन लिख सकते हो, राइट? अब इसमें अगर मैं R1 और R2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जो इक्वेशन जो है ये कॉमन, to take common LCM with R1 and R2, so we can write R2 into V of S. So R2 into V of S minus R2 into V of, this is VIS, equal to, if you take common R1 R2, right? So R1 R2 C1 into S, right? R1 R2 C1S into V of S प्लस, अब इसमें से आपको R1 कॉमन आएगा, दैट इज R1 into V of S minus V naught S equal to 0, right? और इस LCM को आप हटा सकते हो, दिस इज द R1, यहाँ से आप इसको LCM को हटा सकते हो, क्योंकि मैंने LCM को हटा दिया. ठीक है, आपकी इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पर आप VS और
वी एस को यहाँ पर कॉमन ले सकते हो कि बहुत सारी आपके टर्म्स यहाँ पर वी ऑफ एस की है, तो यहाँ पर मैं वी ऑफ एस को कॉमन ले लेता हूँ। तो वी ऑफ एस को मैं यहाँ पर कॉमन लूंगा, यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स है वी ऑफ एस की, राइट। एक आपके पास यहाँ पर वी ऑफ एस की R1 R2 C1 एस है, एक आपके पास R1 है। इस टर्म को अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस R2, राइट। तो R1 R2 C1 एस प्लस R1 प्लस R2, ये बन जाएगा। और ये टर्म आपको अगर हम आपको इधर लेके चला जाऊंगा, ये बन जाएगा R1, यहाँ पर मल्टीप्लाई में R1 नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर R1 आप लिख देना, ये R1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस टर्म को इधर नहीं लेके जाएंगे, इस टर्म को लेके जाएंगे, क्योंकि अपने पास ये इक्वेशन मैंने राइट हैंड साइड वाली लिखी है, राइट। तो R1 इंटू वी नोट एस, इस R1 इंटू वी नोट एस। अब यहाँ पर जो टर्म्स है वी आई ऑफ एस की आएगी, वी आई ऑफ एस की क्या टर्म है, R2 इंटू वी आई ऑफ। तो मैंने यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख सकते हो, बट ये रिलेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। वी आपको क्या फाइंड करना है, वी नोट एस अपॉन वी आई ऑफ एस, राइट। सो वी कैन एलिमिनेट, वी मस्ट एलिमिनेट द वी ऑफ एस, राइट। सो वन मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ वी ऑफ एस, राइट। अब एक इक्वेशन आपको और चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक इक्वेशन आप और यहाँ पे, अब एक इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, कोई बता सकता है एक इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, एनीवन? आपने नोडल एनालिसिस तो पढ़ रखा है, अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। एक इक्वेशन कैसे लिखोगे, वन मोर इक्वेशन? एक को भी नहीं पता है कैसे लिखेंगे? आपने नोडल एनालिसिस तो पढ़ रखा है ना, नोडल एनालिसिस के अंदर आपके पास एक जो है आपके पास अननोन क्वांटिटी होती है, राइट। तो एक तो आप यहाँ पर आपने केसीएल लगा दिया, एक और जगह पर केसीएल लग सकता है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर सर्किट में ये जो करंट जो है, बोथ द आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू 0 एट वी नोट एस। हाँ बिल्कुल, एट वी नोट एस पे क्या लगा सकते हो आप, केसीएल लगा सकते हो। तो वी कैन अप्लाई हियर केसीएल एट नोड वी नोट एस, राइट। तो वी नोट एस पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा, तो वी नोट एस माइनस वी ऑफ एस डिवाइडेड बाई R2। ये तो आपके पास ये वाली करंट आ गई, ये करंट निकालनी, तो वी नोट एस माइनस 0 डिवाइड बाई 1 अपॉन C2S, राइट। तो C2S यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो C2S इंटू वी नोट एस, राइट, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। R2 यहाँ पर इसमें कॉमन ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास वी नोट एस माइनस वी ऑफ एस प्लस C2S R2 वी नोट एस इक्वल टू 0, राइट। दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इजीली दैट वी नोट एस यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, राइट। तो वी नोट एस यहाँ पर मैंने कॉमन लूंगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एस C2R2, और वी ऑफ एस को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा। अब ये जो वी एस को मुझे एलिमिनेट करना है, तो आप क्या काम कर सकते हो, वी एस की वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जिस पर्टिकुलर नोड वोल्टेज आपने अज्यूम किया है इसको एलिमिनेट करना है। So you can put the value of v of s from equation number 2 into equation number 1. So we can put here value of v of s, right? So value of v of s is equal to 1 plus s C2R2 into v naught s, right? तो v naught s अपन लास्ट में लिख देते हैं, R2 C1s plus R1 plus R2 इंटू वी नोट एस, राइट। अब ये जो टर्म्स आपको दिख रही है वी नोट एस की, एक टर्म ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, R1 इंटू वी नोट एस, राइट, और इक्वल टू R2 वी आई ऑफ एस, राइट। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएगा वी नोट एस को आप कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एस C2R2
and R1 R2 C1s प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप कुछ कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म्स आ जाएंगी, R1 R2 C1s प्लस R1 प्लस R2, ये आपका मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब S C2 R2 से मल्टीप्लाई करोगे तो S C2 R2 से करोगे तो S का S स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे R1 R2 इंटू R2 मल्टीप्लाई करोगे तो R2 स्क्वायर बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर R1 इंटू R2, तो R1 R2 मल्टीप्लाई करो तो R1 R2 स्क्वायर C1 C2 S स्क्वायर, राइट। तो वी कैन मल्टीप्लाई R1 R2 स्क्वायर C1 C2 S का होल स्क्वायर, राइट, S का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इसको R1 प्लस R2 से, राइट, तो R1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस S C2 R2 इंटू R1, राइट, और उसके बाद में R2 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो S C2 इंटू R2, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, वरना आप ए से भी आप बोल सकते हो, राइट। अगेन वन इंपॉर्टेंट टर्म इज माइनस R1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे इक्वल टू आपके पास आ रहा है V0 S अपॉन VIS, तो यहाँ पे आपके पास R2 आ रहा है, तो VI ऑफ S को आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास R1 और R1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब पूरी टर्म्स में से अगर मैं R1 R1 को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास R2 कॉमन है, यहाँ पे भी R2 R2 R2, तो यहाँ पूरी टर्म्स में से आप R2 कॉमन ले सकते हो, राइट। तो V0 S on VI of S into R2, right, तो V0 S on VI of S into R2, फिर मैंने R2 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R1 C1S प्लस 1 R1 R2 C1 C2 S स्क्वायर प्लस S C2 R1 प्लस S C2 R2 इक्वल टू R2, राइट। तो R2 से R2 आप कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास इंपोर्टेंट टर्म्स आ जाएगी, V0 S अपॉन VI ऑफ S इक्वल टू, यहाँ पे भी तो कोई क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई अब ये होल टर्म, इट इज R1 C1S प्लस 1 प्लस R1 R2 C1 C2 S स्क्वायर प्लस S C2 R1 प्लस S C2, right, so this is the transfer function of the given network, तो ये आपका आंसर, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अब आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है तो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई भी आपको मैकेनिकल नेटवर्क गिवन है उसका आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जब भी एग्जाम्स में कोई मैकेनिकल नेटवर्क आता है या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आता है तो उसका आप ट्रांसफर फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट दैट कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो पूरे कंट्रोल सिस्टम में काम आएंगे, ठीक है। पूरे कंट्रोल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताने जा रहा हूँ पूरे कंट्रोल सिस्टम में फॉर्मूला जो है काम आएगा, इसको ध्यान से सुनना। आपको मैंने फीडबैक के बारे में बताया था, तो इन कंट्रोल सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक वी विल कंसीडर। फर्स्ट फीडबैक इज नेगेटिव फीडबैक, राइट। तो मैंने आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था, तो अगर कोई किसी भी सिस्टम में मैं ये G of S कंसिडर कर सकता हूँ, देयर इज ए इनपुट देयर इज ए आउटपुट, राइट। इनपुट इज गिवन बाय R of S, आउटपुट इज गिवन बाय C of S। तो दिस पर्टिकुलर
ट्रांसफर फंक्शन इज कॉल्ड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को या फिर इस पर्टिकुलर गेन को बोलेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी ऑफ एस इज कॉल्ड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक क्लोज लूप ट्रांसफर, क्लोज लूप आपको सिस्टम शो किया है जिसके अंदर एक समिंग पॉइंट है, इसको समिंग पॉइंट बोलते हैं, दिस इज द समिंग पॉइंट, राइट। यहाँ मैंने इनपुट दिया है आर ऑफ एस, दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट इज सी ऑफ एस, राइट। देयर इज ए फीडबैक इज गिवन with h of s. So this particular h of s is called the feedback element, or we can feedback transfer function. So this is the feedback transfer function. This is the standard notation of h of s, right? इसको अपन standard h of s से नोट करते हैं। और g of s is the open loop transfer function. This is the open loop transfer function, right? And negative feedback means this show the negative feedback, right? So closed loop transfer function is given by the closed loop transfer function means this particular output upon input। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो क्या होगा, ये CS अपॉन RS, ये तो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। बट आपको क्लोज लूप निकालना है किसी फीडबैक के थ्रू, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, इसका एक प्रूफ भी होता है, प्रूफ पे नहीं जा रहे अपन, सिर्फ अपन डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो जी ऑफ एस divided by 1 plus g of s into h of s, right? This is the closed loop transfer function, this formula for the closed loop transfer function। ये फॉर्मूला पूरे के पूरी 6 यूनिट में काम ही आएगा, मतलब ये फॉर्मूला जो है आपके जितने भी यूनिट्स हैं 6 यूनिट सब में काम आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फॉर द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज g of s नथिंग बट द this g of s nothing but the open loop transfer function, right? तो open loop transfer function plus open loop transfer function into feedback transfer function, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना, ठीक है। अब सपोज गेट इफ वैल्यू ऑफ h of s इज इक्वल टू 1, अगर आपके पास h of s की वैल्यू जो है, इस फीडबैक की वैल्यू जो है गेन की या ट्रांसफर फंक्शन की 1 वैल्यू जाती है, तो इट इज कॉल्ड द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में बोलता है दैट सिस्टम हैज यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, दैट मीन्स यूनिटी का मतलब 1, तो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक मतलब यहाँ पे h of s की वैल्यू कितनी है 1, राइट। तो यहाँ पर h of s की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा g of s डिवाइड बाई 1 प्लस g of s, राइट। अगर इससे आपको वापिस से सपोज आपको क्वेश्चन में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, राइट। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। बट ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है, जब आपको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक गिवन है, ठीक है। आपको h of s गिवन है तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ कि जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रखा है, मान लो उसकी कुछ वैल्यू है, तब कैसे फाइंड करेंगे। तब आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले से आप मल्टीप्लाई करके और g of s को कॉमन लेके फिर आप g of s फाइंड कर सकते हो। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक तरह से क्या है, g of s है, राइट। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, g of s को कॉमन लेना पड़ेगा, और वहां से आप इजीली जो है g of s को फाइंड कर सकते हो। वो मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। दिस टू फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज पॉजिटिव फीडबैक। नॉर्मली जो है आपके पूरे कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक आपका 100 में से 99 टाइम्स यूज होगा, राइट, नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जो है कभी कभी आपके पास 1-2 बार यूज में आ सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मीन्स अगर आपके पास ये जो समिंग पॉइंट का पॉइंट है, अगर इसको मैं प्लस कंसिडर कर सकता हूँ, दैट मीन्स इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक। तो फॉर्मूला फॉर द पॉजिटिव फीडबैक इज g of s डिवाइड बाई 1 माइनस g of s h of s। तो वहां पे आपके पास नेगेटिव फीडबैक था, तो आपके पास ये जो फॉर्मूले के अंदर प्लस आ रहा है, राइट, और नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक था, तो आपके पास ये जो है सिस्टम के अंदर फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक देख सकते हैं। एनी डाउट इन दिस टॉपिक?
मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। मीन्स ये एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का, अभी आया नहीं आज तक, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है थ्योरी में, या फिर 4 नंबर का, मैक्सिमम 4 मार्क्स तक आ सकता है, 2 to 4 मार्क्स। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। ठीक है, मतलब जो जी ऑफ एस मैंने फाइंड किया है उसका उसमें अगर मैं फीडबैक लगा देता हूं तब उस फीडबैक का क्या क्या इफेक्ट आता है, राइट। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन, मतलब ओवरऑल गेन जो फाइंड करूंगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, वो अपन देखने वाले हैं। सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, राइट। एक तो इनिशियल सिस्टम कौन सा था, फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। तो सबसे पहले अपन ओवरऑल जो गेन जो है उस पर क्या इफेक्ट करेगा फीडबैक, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s, right? If we apply input r of s and if we gain the output c of s, right? तो ये तो सिस्टम आपका कौन सा है जब आपने फीडबैक अप्लाई नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में दिस इज कॉल्ड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज g of s। g of s इज नथिंग बट द गेन, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में अपने पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है, g of s आ रहा है, या गेन कितना आ रहा है, g of s आ रहा है, राइट। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं अपन। सेकेंड कंडीशन में अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसमें g of s नथिंग बट क्या है, c of s अपॉन r of s, यही है। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो अपना c of s अपॉन r of s क्या रहा था, चलो जो फॉर्मूला है वही मैं वापस लिख रहा हूँ, g of s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g of s इंटू h of s। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन 1 प्लस g of s इंटू h of s इंटू g of s, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये जो गेन जो आपके पास था दिस इज नथिंग बट द गेन। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन, गेन या ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो ये गेन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में g of s था, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपका क्या हो गया, g1 बाई g of s एंड h of s टाइम्स, राइट। That means आपके पास g of s में कुछ क्वांटिटी 1 प्लस है, इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी 1 से ज्यादा होगी, राइट। g of s h of s आर पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी आपके पास जो है आपके पास कुछ डिवाइड होगी, राइट। That means जैसे मैंने फीडबैक ऐड किया तो आपके पास जो ओवरऑल गेन था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ, कि ये क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज होगी और ओवरऑल क्वांटिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू द ओपन लूप सिस्टम, राइट। दैट मींस इफ वी अप्लाइंग द नेगेटिव फीडबैक ऑफ एनी ओपन लूप सिस्टम then the overall gain is reduced, right? That is the effect of overall gain. Any doubt in this topic? तो आपके पास जब भी अपन फीडबैक ऐड करेंगे दैट मीन्स आपके पास जो ओवरऑल गेन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी आ रही है दैट इज मोर देन 1, राइट। दैट मीन्स ओवरऑल गेन इज रिड्यूस। सेकेंड मेथड और सेकेंड इफेक्ट is the second effect is the effect of feedback on stability. What is the effect of stability? Okay, second effect on stability. तो स्टेबिलिटी पे किस तरह से इफेक्ट करता है, कि सपोज आपके पास ही स्टेबिलिटी के इफेक्ट को समझने के लिए मैं एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो सपोज ए ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज k divided by s plus t, here k and t are the positive constant। ठीक है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसा भी हो सकता है, राइट। समझने के हिसाब से अपन मैं एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ, राइट। अगर मैं दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका मैं एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूं एंड वी आर कंसिडरिंग नेगेटिव यूनिटी फीडबैक, तो व्हाट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज g of s divided by 1 plus g of s into h of s, यही होता है। तो अभी आप पुट कर सकते हो k divided by s plus t divided by 1 plus k upon s plus t, और आपके पास जो h of s की वैल्यू 1 है, राइट। तो यहाँ पे
वैल्यू जो आएगी एफ प्लस टी को यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एफ प्लस टी प्लस के, यहाँ आपके पास जो गेन आ रहा है या फिर क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ रही है, इट इज के इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एफ प्लस टी प्लस के। ठीक है, अब इसको आप समझना अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब फर्स्ट कंडीशन थी जब आपने कोई फीडबैक नहीं लगाया, सेकेंड कंडीशन जब आपने फीडबैक लगाया। ठीक है, जब फर्स्ट कंडीशन में जब आपने फीडबैक नहीं लगाया था उस टाइम पे आपके पास जो पोल्स क्या है, पोल्स इज एस इक्वल टू माइनस टी, और जब आपने फीडबैक लगाया तब आपके पास पोल्स क्या आ रहा है, माइनस टी प्लस टी, और आपके पास नेगेटिव। दैट मीन्स आपके पास व्हेन वी अप्लाई फीडबैक ऑफ एनी सिस्टम देन द पोल्स आर शिफ्टिंग, राइट। पोल्स आपके क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहले सपोज यहाँ पे पोल्स थे, सपोज यहाँ पे पोल्स थे, राइट, यहाँ फर्स्ट कंडीशन। तो सपोज सेकंड कंडीशन में पोल्स आपके यहाँ भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ टी एंड के, राइट। तो आपके पोल्स यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये और नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के एंड टी, राइट। इसका मतलब क्या है, व्हेन वी अप्लाइंग फीडबैक ऑफ एनी सिस्टम देन द पोल्स आर शिफ्टिंग आइदर इन right hand side or left hand side. That means the system stability we will not know that either the stability will improve or decrease, right. तो आपके पास जो है अगर आप किसी भी सिस्टम में फीडबैक अप्लाई कर सकते हो तो या तो इम्प्रूव भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। ठीक है, तो आपको सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको फीडबैक अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी इंप्रूव, राइट। तो फीडबैक लगाने से कंफर्म नहीं है कि सिस्टम इंप्रूव होगा, राइट। सिस्टम की जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी पार्ट। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? ये दो इफेक्ट में से किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और रिपीट करना है, देखो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको ये सिस्टम और अच्छे समझ में जाएगा, जो कि अपन आगे डिस्कस करने वाले थे, तो मैं इसमें बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर होगा। ठीक है, देखो अपने पास अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं फीडबैक एलिमेंट को ऐड करता हूं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी है क्या। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था आगे, बट मैं भी डिस्कस कर देता हूं। अगर मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूं तो सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब आपके पोल जो हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ प्लेन में लाई करते हैं। This is the S plane, this sigma, this is j omega, this is the S plane, right। इसको मैं S plane बोलता हूँ। अगर आपके पास पोल जो हैं इस पर्टिकुलर, इसको मैं कहूंगा j omega एक्सिस, राइट, S plane, राइट, लेकिन नॉट S plane, लेफ्ट साइड ऑफ S plane बोल सकता हूँ या लेफ्ट ऑफ j omega एक्सिस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पोल जो है j omega एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं तब सिस्टम स्टेबल होगा, राइट। और राइट हैंड साइड में लाई करता है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं तो आपका सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, राइट। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आता हूँ कि अपने पास क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है कि सपोज मैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट को ऐड करता हूँ। फीडबैक एलिमेंट मेरे पास क्या है, एच ऑफ एस, राइट। अगर मैं फीडबैक एलिमेंट को ऐड करता हूँ तो आपके पास सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो देयर आर टू कंडीशन, फर्स्ट when we do not add feedback element, second condition when we add feedback element। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब अपन ने फीडबैक एलिमेंट को ऐड नहीं किया था, राइट। तो नहीं किया था उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय ये आपके पास ये भी क्या है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ के अपॉन एस प्लस टी। आप चाहो तो कोई और फंक्शन भी अज्यूम कर सकते हो, मैंने ये अज्यूम किया समझाने के लिए, ठीक है। तो k अपॉन एफ प्लस टी मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन अज्यूम किया है, दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर।
तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ यू ऐड द फीडबैक एलिमेंट, तो फीडबैक एलिमेंट ऐड करते हैं तो क्या आएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय g ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s इनटू h ऑफ s। यहाँ पर h ऑफ s की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 पुट कर दिया, k अपॉन s प्लस t 1 प्लस k अपॉन s प्लस t। यहाँ पर मैंने s प्लस t को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर वैल्यू आ गई k अपॉन s प्लस t प्लस k, राइट। अब यहाँ पर आप दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास c ऑफ s अपॉन r ऑफ s की वैल्यू कितनी थी, k अपॉन s प्लस t। सेकेंड कंडीशन में जब आपने फीडबैक एलिमेंट किया तब इसकी वैल्यू कितनी थी, k अपॉन s प्लस t प्लस k। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास पोल्स क्या आ रहे हैं, पोल्स मीन्स व्हेन वी आर this particular denominator part is equal to 0, then we find the poles, right? So s equal to minus t is the poles, and if we this particular terms equal to 0 denominator part, so poles is s equal to minus t minus t, ठीक है। ये आपके पास पोल्स आ रहे हैं। अब ये जो पोल्स आपके पास है वो ऑलरेडी सपोज ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है या फिर कहीं भी है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये जो पोल्स आ रहे हैं वो माइनस टी माइनस के आ रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यू जो k की है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। k की वैल्यू t से ज्यादा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तब डिपेंड करेगा कि सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो अपन नहीं बता सकते कि जब भी अपन फीडबैक एलिमेंट में ऐड करता हूं तो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, राइट। और ये क्यों नहीं बता सकता हूं, बिकॉज मुझे k और t की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अगर पता होती तो मैं बताया था, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना है या फीडबैक एलिमेंट आपका इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि आपके पास जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करें, ठीक है। दैट मींस वी कैन नॉट से दैट सिस्टम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, राइट। तो आपके पास सिस्टम जो है स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। काशी समझ में आ गया आपको, डाउट अभी कोई? क्लियर है? Then the next topic is effect of feedback on sensitivity. अब सेंसिटिविटी क्या है सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं, फिर अपन इफेक्ट के बारे में चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेंसिटिविटी? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी, राइट। तो सबसे पहले मैं सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। तो सेंसिटिविटी डिफाइन एज, सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, एस जी टी। अब ये टी और जी क्या है, सपोज मैंने कोई ट्रांसफर फंक्शन किया, सपोज टी ऑफ एस से नोट कर रहा हूं मैं इसको, इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो दिस इज टी इज द ट्रांसफर फंक्शन, वैल्यू का ट्रांसफर फंक्शन, g is the open loop transfer function, right? तो g of s क्या है, open loop transfer function। तो s g t equal to, that is sensitivity equal to the formula for the sensitivity delta t of s divided by ts and divided by delta g of s divided by g of s. This is the formula of sensitivity। और इसको बोलने का जो तरीका जो है वो क्या होगा, this is the formula of sensitivity। So that SGT इसको क्या बोलेंगे, the sensitivity of this system G of S to the parameter G of S, right? Sensitivity of the G of S की sensitivity निकाल रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में to the T of S, इसको कहेंगे sensitivity। तो this is the formula of sensitivity, right? और इसको सिंपल टर्म्स में लिखते हैं अपन, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा। नॉर्मली क्या है कि लिखने का तरीका ये होता है, बट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इजीली फॉर्म में एक टर्म्स आती है, डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा जी। मैंने क्या करा, टी एस को तो ये डिनोमिनेटर पार्ट नीचे आ गया और जी ऑफ एस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो दिस इज द सेंसिटिविटी, ठीक है। अब ये सेंसिटिविटी का इफेक्ट दे रहा है कि सेंसिटिविटी
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है अपनी पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन निकाल रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए टी ऑफ एस क्या होता है, जी ऑफ एस ही होता है ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर अब मैं अप्लाई करता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा जी एस, अगर इसको जी ऑफ एस के रिस्पेक्ट में मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, वन ही आएगा। इस जी ऑफ एस के रिस्पेक्ट में जी ऑफ एस को करूंगा तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेंसिटिविटी निकालते हैं, सेंसिटिविटी क्या आएगा, जी ऑफ एस डिवाइड बाई टी ऑफ एस। तो टी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जी ऑफ एस, राइट, इनटू डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा जी एस की वैल्यू कितनी है, वन, इट इज वन, राइट। तो वन इंटू वन, इसका मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए सेंसिटिविटी कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो सेंसिटिविटी फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज वन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका आपको डिफरेंशिएट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू जीएस, ठीक है। तो जीएस के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता होगा, अगर मैं u बाई वी का डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर पी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास u बाई वी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मैं इजीली जो है डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होल स्क्वायर, नो नीड टू वरी, आई कैन take the second lecture because Ankita ma'am is busy in some other work, so I will take second lecture, right? No need to worry about time. 1 plus g of s h of s whole square, और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 1 plus g of s h of s है, यहाँ पर v जो है 1 plus g of s h of s आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब g of s का आपको डिफरेंशिएट करना है u का। तो g of s को g of s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस उसके बाद में u इंटू डी वी। तो u आपके पास क्या है, g of s है। अब आपको g of s को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 1 का डिफरेंशिएट तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी 0, इसका डिफरेंशिएट g of s के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या आ जाएगा, h of s, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h of, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये g of s h of s है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 इंटू 1 से क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम क्वांटिटी आएगी, राइट। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बिकम डेल्टा t ऑफ s डिवाइड बाय डेल्टा g ऑफ s इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा जी एस आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3 सपोज, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा समझाना। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, अब यहाँ पर इक्वेशन में आप जी ऑफ एस और टी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो एस टी एंड टी इक्वल टू जी ऑफ एस। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए टी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद में यहाँ पे डेल्टा टी ऑफ एस अपॉन डेल्टा जी ऑफ एस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप एक टर्म जो है 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस की कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास एस जी टी सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी, और यहाँ से आप ये भी कैंसिल आउट कर सकते हो, जी ऑफ एस से जी ऑफ एस से कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस यहाँ पे नीचे है, तो सारी कैंसिल आउट हो गई। कितनी टर्म्स आ गई मेरे पास,
1 divided by 1 plus g of s into h of s. That is the sensitivity. That is the sensitivity for the closed loop ट्रांसफर फंक्शन इन द सेकंड कंडीशन. ठीक है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में आई है? सेकंड रेस्पेक्ट में. तो आप देख सकते हो कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट कंडीशन में 1 था, सेकंड कंडीशन में आपके पास 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस आ गया. दैट मींस द सेंसिटिविटी इज रिड्यूस्ड व्हेन वी आर अप्लाइंग द, क्योंकि ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में 1 से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो सेंसिटिविटी इज रिड्यूस्ड व्हेन वी अप्लाइंग द नेगेटिव यूनिटी फीडबैक और द नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, एनी डाउट? Any doubt in this topic? Am I audible to you all? तो क्लियर है यहाँ तक सब?